Hello guys, welcome to this session of Vedantu. So how are you all doing? कैसे हो मेरे दोस्तों? Nirmit, now I am live, so you don't need to worry. Actually, there is some problem going on, right? So now it is fine. Hi Nirmit, hello Priyanshu, hello Seema. So बच्चों, welcome to this session of Vedantu. So how are you all doing? Everything is absolutely fine. Please let me know. So you are from West Bengal. Okay. So Manoj, if I don't think your name is Manoj, and if it is, then that is also completely fine. So yeah, if I talk about West Bengal, so the West Bengal's paper is quite similar to that of Maharashtra because in the paper of West Bengal also you will get to see many questions coming out of your state board, right? So इसलिए जरूरी है कि you have to focus on both your state board as well as your NCERT. But for the students of Maharashtra, I'll tell you about the cutoffs also for this particular year. And yeah, zero questions from NCERT, I know. Most of the questions in Maharashtra have come from state board and not most of all the questions, right? So सारे questions जो हैं वो आपके state board से ही आए हैं. तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इसलिए कि आपको दो चीजें नहीं पढ़नी. You just have to focus on your state board. So it is this paper is quite tough if we compare it with the paper of Jharkhand, if we compare it with the paper of Jammu Kashmir or Delhi, but it is quite easy as if we will compare it with UP और बिहार. ठीक है तो ये थोड़ा सा है निर्मित कट ऑफ कम नहीं होगा दोस्त बिकॉज इट इज ऑलरेडी रिटन इन द सिलेबस दैट देयर विल बी क्वेश्चंस कमिंग आउट ऑफ द स्टेट बोर्ड तो फिर क्यों होगा तो कट ऑफ विल रिमेन द सेम. Chandigarh, yeah, Chandigarh also all the questions were from NCERT, and that is why the cutoff of Chandigarh is around 180 this year. Right, it will be probably 180. So, Bacho, let's begin the session, and we are going to analyze and discuss the paper of Maharashtra, which was held on 30th of December, and all the questions from this particular session are from your respective state board. Yeah. So, the first question, the Annalise School gave a new direction to history writing. Identify the newly recognized aspect which was stated by the Annalise School. So, bachcho, this is a modern histories question, right? And it is limited to Maharashtra only. But most of the, एक second, just a second. I read and say the state board, but in Nirmit, first of all, I would like to tell you that economics and civics, these are not state based, right? So the election of president, the election of prime minister, the sectors of economy, the constituency, the parliament, these remain same for every state. So you don't have to focus on civics and economics for your state board. Rather, you have to focus on geography and history only because that is different from state to state. The civics and the economics remains the same. तो इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो आपको एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है बहुत सारी चीजें. ठीक है सो यस सो लेट्स स्टार्ट this topic. French Annalise School, obviously. So Annalise School was established in 1920 in India, right? So the Annalise School gave a new direction to history writing and it focused on the study of trade technology and the means of communication. ठीक है so C is the correct answer and it is only written in the book of Maharashtra. कहीं और के बुक में है ही नहीं इसके बारे में कुछ भी. ठीक है तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं दैट no one is able to teach you, right? Not even me. Who argued that the prevailing practice of arranging historical events in a chronological order is not right? Right. So you can, if you don't have idea about it, so simply what you can do, you can eliminate the wrong answers. ठीक है. So Karl Marx and Friedrich Hegel नहीं Friedrich Engels. Right. So the Friedrich Engels and the Karl Marx they dealt with the socialism. They were not historians. ये तो आंसर हो ही नहीं सकता. ठीक है. Now the doubt arises between Michael Foucault and लियोपोल्ड वॉन रैंक. सो इन दोनों के बीच में अगर आपको आइडेंटिफाई करना हो कि व्हाट इज द करेक्ट आंसर, ऑब्वियसली वेरी गुड यार निर्मित. सो द करेक्ट आंसर इज माइकल फोकॉल्ट, राइट? सो ही वाज born in 1896. No, sorry. He had given this statement in 1896 and he said that history should not be arranged in a chronological order because we don't have enough sources. What do the historians do? You all know. The historians simply put a story on their own by getting evidences from different sources. तो historians करते क्या हैं? वो अलग अलग sources से अलग अलग चीजें लेते हैं. ये ऐसे टेक्सचुअल लाइन है बिल्कुल सेम टू सेम. तो हिस्टोरियंस करते क्या है यार दोस्तों? वो कुछ ज्यादा कुछ नहीं करते, मतलब वो सारे रिसोर्सेज को असेंबल करते हैं और फिर उसके बाद एक स्टोरी लाइन खुद ही बना लेते हैं. सो दैट इज वाई वी कैनॉट से दैट हिस्ट्री इज ऑलवेज करेक्ट और द हिस्ट्री इज रॉन्ग.
because it is based on assumptions on the basis of resources that they get. इसका आंसर तो हो गया ए, सिंपल। चलो, ईश्वर दास नागर, भीमसेन सक्सेना वर द हिस्टोरियंस ऑफ, तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। द ये भी डायरेक्टली बुक से ही दिया हुआ है। द करेक्ट आंसर इज बी, औरंगजेब। तो भीमसेन सक्सेना और ईश्वर दास नागर जो हैं ये औरंगजेब के टाइम पे हिस्टोरियंस हुआ करते थे। एंड देयर इज नथिंग टू एक्सप्लेन इन दैट, दैट इज सिंपली अ टेक्सचुअल लाइन, लाइक निर्मित said. Sai Jazz. What a name, man. Identify the style of painting which influenced the Maratha style of painting. So that is very simple. You can even guess it. Right. I didn't know the correct answer of this question, honestly, but I guessed it correctly that it will be C, the Rajput Kala. ठीक है, महाराष्ट्र और राजस्थान फेमस फॉर राजपूत्स। ठीक, तो राजपूत कला से वेरी गुड निर्मित, तो बिल्कुल राजपूत कला से इन्फ्लुएंस होके और महाराष्ट्र पेंटिंग होती है। द टेम्पल्स बिल्ट इन द हेमतपंथी स्टाइल एंड प्लेसेस ऑफ इट आर गिवन बिलो, आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर। राइट, तो हेमतपंथी स्टाइल जो है ये स्टाइल साउथ इंडिया की स्टाइल थी। राइट, हाँ, इट वाज अ साउथ इंडियन स्टाइल। बॉक्स क्वेश्चंस, बॉक्स क्वेश्चन क्या होता है? साउथ इंडिया का स्टाइल है ये, ठीक है, हेमतपंथी स्टाइल। सो द करेक्ट आंसर इज वेरूर कैलाश, ये इज द करेक्ट आंसर। तो ये सारे के सारे बुक के स्टेटमेंट दिए हुए हैं आपको सीधा सीधा उठा के। Newspapers dash began to publish articles about the nationwide situation, books in the native languages and the politics in the other countries. Right. So ऐसे कौन सी, do you know questions? I'm not getting your point, Arvind. So yeah. So which newspaper dealt with the nationwide situations in Maharashtra? Right, books in the native languages and the politics of different other nations. So we know that a Kesari newspaper, which was published in Maratha language and which was published by Bal Gangadhar Tilak. So it dealt with the nationwide problems going on in the country. So B, Kesari is the correct answer. B, not A. Who was the editor of the periodical named Pragati 1920? Right. So Pragati यार किस चीज का न्यूज़पेपर था? I don't exactly remember. Sorry for this. Yeah, but I do remember the name of the editor. So the name of the editor was Trayambak Shankar Sejwalkar. So C is the correct answer for this question also. Cool. Next question. Identify the correct option from the alternatives given below. तो आपको correct answer जो है, do you know, is extra info? Yes. हाँ हाँ, बॉक्स क्वेश्चंस ना, राइट। बच्चे निर्मित, आई ऑनेस्टली आई विल टेल यू दैट आई डोंट हैव दिस महाराष्ट्र स्टेट बुक राइट नाउ विथ मी। ठीक है, तो अभी मेरे पास है नहीं, और मतलब है कहीं रखा हुआ है तो ढूंढना पड़ेगा मुझे। तो यार महाराष्ट्र, अब ऐसे तो इतने सारे स्टेट्स हैं जिनकी हर स्टेट की हिस्ट्री अलग अलग है, तो भाई इतना सारा तो मैं कहाँ ही याद कर पाऊंगा। ठीक है, दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर मी। चलो, सो आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। सो ये तो बहुत ही इजी है। निर्मित ने आंसर कर दिया है ए। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। ठीक है, पाटन एट गुजरात, रानी की वाव, वन का सी है। हम्पी इज अ ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, हम्पी है क्या? ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स ही तो है, सिंपल। ठीक है, इसलिए इतना फेमस है। सी 3 जो चंडीगढ़ है वो क्या है? एक मिनट, ठीक है, राइट। चंडीगढ़ इज द कैपिटल कॉम्प्लेक्स, राइट। तो चंडीगढ़ जो है उसको हम कैपिटल कॉम्प्लेक्स इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट इज कैपिटल ऑफ टू स्टेट्स, राइट, हरियाणा एंड पंजाब। एंड वेस्ट बंगाल इज फेमस फॉर छाऊ डांस। सो इट इज बेसिकली द ओरिजिनेशन ऑफ असम, असम का डांस का ओरिजिनेशन है, बट इट इज ऑल्सो फॉलोड इन वेस्ट बंगाल। सो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर रिलेटेड टू इट्स मूवीज एंड इट्स डायरेक्टर। ठीक है, तो ये भाई महाराष्ट्र का है, ये बॉलीवुड था नहीं, तो मुझे कुछ भी नहीं पता था इसके बारे में। ठीक है, सो मैं इसके बारे में ज्यादा आपको डिटेल दूंगा भी नहीं। और द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बाजी प्रभु देश पांडे एंड दादा साहेब तोराने। इन्होंने शायद इसको नहीं बनाया था। यस, टू स्टेट्स प्लस वन यूटी कैपिटल, राइट। So I don't have any information regarding this. So I'm really sorry. I will not be able to help you out in this. Very old film 1930, yeah. कुछ भी नहीं पता मुझे इसके बारे में। I searched it on Google and found the answer key.
मतलब फाउंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन टू बी डी, तो इसका डी है भाई आंसर। तो नहीं पता, वो नहीं पता। डैश स्कीम वाज लॉन्च्ड इन 1970-71 इन महाराष्ट्र। ठीक है, हमें भी नहीं पता, तो ये मैंने थोड़ा पढ़ा था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा द न्यूट्रिशियस डाइट स्कीम। और न्यूट्रिशियस डाइट स्कीम में जो गवर्नमेंट का प्लान था एट दैट टाइम वाज गिविंग 1700 कैलोरीज फॉर ऑल द पीपल। यस ऑब्वियसली, तो 1700 कैलोरीज प्रोवाइड करना, दैट वाज द प्रोविजन दैट वाज मेड बाय द गवर्नमेंट इन 1970-71। नाइन्थ का ये। Which game was not mentioned in the ancient India architecture and in the epics? ठीक है, तो ऐसा कौन सा गेम है जो एंशियंट इंडियन आर्किटेक्चर और एपिक्स के अंदर नहीं है? सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बॉक्सिंग। देखो डाइस जो है ना, मतलब ट्यूब, तो डाइस का गेम वेद में मेंशन है, बहुत पुराना। हॉर्स एंड द चैरियट रेस बहुत पहले से राजा महाराजा किया करते थे। चेस, तो इंडिया हैज डिस्कवर्ड चेस, सो द करेक्ट आंसर इज सी, बॉक्सिंग। बॉक्सिंग बॉक्सिंग नहीं है भाई। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द बुक विच हैज डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लाइंग डॉग्स। ठीक है, सो ऐसी, हाँ दिस वाज सिंपल। नो, नो नॉलेज अबाउट दिस क्वेश्चन एट ऑल। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता मुझे। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द बुक विच हैज द डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लाइंग डॉग्स, सो द आंसर इज ए, कथा सरित सागर। बट मुझे नहीं पता, मुझे मिला भी नहीं कि आपकी बुक में कहाँ लिखा हुआ है। सो नो कमेंट्स अबाउट दैट। आई थिंक इट इज नॉट रॉन्ग टू बी ऑनेस्ट। वाह यार, यार एक्चुअली क्या है ना, मेरे पास जो आपकी स्टेट बोर्ड की बुक है उसके नोट्स पड़े हैं। ठीक है, वो बुक नहीं पड़ी मेरे पास, तो इसलिए जो टॉपिक नहीं मिले वो नहीं मिले यार, क्या कर सकते। ऑब्जर्व द पिक्चर एंड आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द केव वेयर दिस स्कल्पचर इज कार्व्ड। राइट, सो आई हैव सीन दैट मोस्टली स्टूडेंट्स हैव आंसर्ड ए अजंता, बट द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज घारापुरी। राइट, सो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो है बी, घारापुरी, नॉट अजंता। वेरी गुड रचना रे यार, यू आर डूइंग अमेजिंग बच्चों, वेरी गुड। Identify the first nuclear reactor of India functioning on atomic energy. So that is a very good question. It's gone many times in your CST. Very good. So the first nuclear reactor of India functioning on the atomic energy is B, Apsara. ठीक है, ये तो बहुत ही, हाँ ये तो बहुत easy था, and I think everyone should know that. So it's B, Apsara. The 5-year plan consisted of measures to lay the foundation of planned economic development. तो ऐसा कौन सा 5th ईयर प्लान था जिसमें प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की गई थी? सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस क्वेश्चन, इट इज नॉट मेंशन्ड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट नेशनल और नेशनल 5-ईयर प्लान पॉलिसी और द महाराष्ट्र 5-ईयर प्लान पॉलिसी, तो मुझे नहीं पता। बट अकॉर्डिंग टू मी इट वाज द फर्स्ट प्लान, बिकॉज हर प्लान के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ही बात की गई थी। जस्ट द फोकस वेर शिफ्टेड इन द फर्स्ट 2 5-year plans, इट वाज फोकस्ड ऑन एग्रीकल्चर, देन इट वाज फोकस्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग, तो वो चेंज होते रहता था। बट द करेक्ट आंसर इज ए, तो पहले से ही हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में ही बात कर रहे हैं इन द 5-year नेशनल है। ओके, मैंने भी आंसर नेशनल के हिसाब से ही चूज किया है। आइडेंटिफाई द वेल नोन प्ले ऑफ शेक्सपियर ऑन विच मराठी प्ले नाट सम्राट वाज स्टाइल्ड। राइट, तो नाट सम्राट जो है ये किस शेक्सपियर के स्टाइल पे? वेरी गुड, सो द करेक्ट आंसर इज बी, किंग लेयर। राइट, if you have not heard if you have not read Hamlet, I will highly recommend you to give and to give a read, because it is an amazing book. ठीक है, Julius Caesar, I guess I had studied it when I was in class 6th or 7th. ठीक है, इंग्लिश के चैप्टर में था। रोमियो जूलियट I have not studied it, but the correct answer of this question is B, the king lear. Which provision is not included in the basic structure of the Indian Constitution? Basis नहीं, sorry, basic. So which provision is not included in the basic structure of the Indian Constitution? Right, the federal structure of constitution, the promotion of unity and integrity, the sovereignty of the nation, or the supremacy of the parliament. बेटा हैमलेट मैंने बुक पढ़ी है, ठीक है, और हैमलेट के ऊपर वो मूवी भी बनी थी शाहिद कपूर की, क्या नाम था उसका, क्या नाम था उस बुक का, उस मूवी का? हैदर। Yeah. So D, the supremacy of the parliament. Federal structure has been included in the constitution since its making. प्रमोशन ऑफ यूनिटी इंटीग्रिटी बेसिस है कॉन्स्टिट्यूशन का। सॉवरेंटी, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये सारा हमारा सॉवरेन और सॉरी बेसिस है डेमोक्रेसी का। बस एक सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर।
After which reforms the farmers movement became more active and effective. So we know tenancy laws, फर्क ही नहीं पड़ता. Laws related to tilling of the land, टिटलिंग नहीं, टिलिंग ऑफ द लैंड, ये से फर्क नहीं पड़ता. डेट रिलीफ कोई फर्क नहीं पड़ता. ग्रीन रेवोल्यूशन, सिंपल. Right? So D is the correct answer. Choose the wrong statement which is not mentioned in the Article 51 of the Indian Constitution. That is very tough question because you will have to remember all the 11 fundamental duties. ठीक है? So establishment of international peace and security, foster respect for international law, discourage settlement of international disputes by arbitration, or maintain justice and honorable relation between nations. So the correct answer of this question is C. डिस्करेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन. तो आर्बिट्ररी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन हमारा अडॉप्ट नहीं करे तो भाई गांधी जी का देश है, आर्बिट्ररी लॉज कैसे एक्सेप्ट करेगा? आर्बिट्ररी मतलब क्या होता है? फोर्स करना. ठीक है, सो सी इज द करेक्ट आंसर. According to you, which two conditions among the options are violating the code of conduct? The candidates distribute items of household use. दो इसमें से कौन से नहीं होंगे? सही जवाब. So the candidates distribute items of household use. Promise made to resolve the water problem if elected. To go from door to door to meet voters and request them to vote. To appeal on the basis of caste and religion to get the support. Article 51 is about foreign relations, 51A is about fundamental duties. तो अगर 51 पूछा है तो 51A भी पूछ सकता है, इसलिए मैंने बोला कि थोड़ा टफ है, याद करना. मुझे पता है कि आर्टिकल 51 इज फॉरेन रिलेशंस. 35 प्लस आते हैं. अरे वेरी गुड यार, दैट इज ऑसम. हेलो शिवा. सो इट्स ए एंड डी. आप घर का सामान नहीं दे सकते, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ ब्राइब. ठीक है, और रिलीजन और कास्ट के बेस पर तो कोई वोट मांग ही नहीं सकते, दैट इज अगेंस्ट द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट. सो हु इज नोन एज द वाटरमैन ऑफ इंडिया? सो डॉक्टर राजेंद्र सिंह राणा इज कंसिडर्ड टू बी द वाटरमैन ऑफ इंडिया. ये बहुत ही सिंपल था. Very good. The idea of partyless democracy is put forth by the following leaders. Choose the wrong option. Name of the leader who does not support the concept of partyless democracy. किस इंसान ने पार्टीलेस डेमोक्रेसी को सपोर्ट नहीं किया है? अरे वाह, वेरी गुड, इसलिए तो आपको सब आता है. सो इट्स बी, लोकमान्य तिलक. महात्मा गांधी ने भी बोला था, विनोबा भावे ने भी बोला था, जयप्रकाश नारायण ने भी बोला था. ठीक है, सो बी. चूज द नंबर ऑफ percentage which has raised to increase the representation of women in politics. So it's be 50%. It has not been included yet. ठीक है, तो ये बस proposal है. In the above diagram, wave cut platform has been shown with which letter? ठीक है, so wave cut मतलब जब waves आती हैं तो वो जब कट करते हैं किसी भी चीज को तो वो क्या होता है? वो पता ही है कि ओशन में बहुत सारी चीजें बनती हैं. ठीक है, ओशन में आइलैंड्स बन सकते हैं. हाँ, वेरी गुड. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी. ये है भाई वेव कट. बी, ये वेव कट नहीं है. वेव्स जब आते हैं ना तो वैसे बीच से काट के ले जाएंगे किसी भी चीज को. शारदा 155 इज थोड़ा सा मुश्किल है यार. 155 थोड़ा मुश्किल है मुझे ऐसा लगता है. ठीक है, इट शुड बी अराउंड 165 इन माय ओपिनियन. बट यार वी कैन नॉट प्रेडिक्ट इट बिकॉज द क्वेश्चन वाज वेरी वेरी टफ. कट ऑफ यार मेरे अकॉर्डिंग तो इट शुड बी अराउंड 165 प्लस माइनस 5. पास्ट ट्रेंड के हिसाब से भी देखें तो 170 तो होता ही है यार महाराष्ट्र. Increase in the dash is an indicator of development of the society of the country. So increase in sex ratio, density, population, कोई फर्क नहीं पड़ता. Increase in life expectancy. जब लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी तो सोसाइटी का डेवलपमेंट. वेरी गुड संगीता. So match the appropriate pair of a region and its major forest type shown with the letters coded in the outline map of India. ठीक है, फेस, हाँ फेस कंसिडर टफ है. राइट राइट. सो बताना है इसका आंसर तो बहुत ही सिंपल है कि देखो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं, जल्दी जल्दी इसको कंक्लूड कर देता हूँ. सो इट्स बी. मींस ये कहाँ है? ये हमारा हो गया एवरग्रीन फॉरेस्ट बिकॉज इट इज एट वेस्टर्न घाट. ठीक है, बी हमारा हो गया द ग्रेट थार डेजर्ट, मतलब यहाँ थार डेजर्ट है तो ऑब्वियसली देयर विल बी अ थॉर्नी स्क्रब फॉरेस्ट. ठीक है, सी हमारा हो जाएगा द डेक्कन प्लेटू. तो डेक्कन प्लेटू में कौन से फॉरेस्ट मिलते हैं? द डेसिडुअस फॉरेस्ट आर फाउंड देयर. एंड डी अगर हम बात करें सो डी इज, आ गया डी, दिख ही नहीं रहा.
ठीक है, डी इधर कहीं था, हाँ यहाँ पे है ना, देखो यहाँ पे है डी। सो डी इज द हिमालयन फॉरेस्ट, के ऊपर है, सिंपल। सो द करेक्ट आंसर इज बी, नॉट ए। ठीक है। फ्रॉम द वेस्टर्न राजस्थान इज कंसिडर्ड द मोस्ट ड्राई पार्ट ऑफ इंडिया, है तो एकदम मतलब हलवा था। जैसलमेर, जैसलमेर से ड्राई क्या है, कुछ भी नहीं। Identify the wrong statement from the statements given below. Brazil is fifth in the world with respect to area. The density of population of Brazil is around 230 persons per square kilometer. According to the census of India, the population of India was around 121 crores, and according to the census of 2011, India's density of population is 282 persons per square kilometer. Right. So, very tough question. The density of population of Brazil is around 400. ठीक है, it's not 230, so B is the correct option. So ब्राजील फिफ्थ है ही एरिया में, इंडिया की पॉपुलेशन 121 करोड़ है और पॉपुलेशन डेंसिटी भी 282, so B is the correct answer. In India, about dash percent of passengers are carried by roads. So यार ये भी बुक में आपके लिखा हुआ है सीधा सीधा, सॉरी, it is C, 85%. ठीक है, तो 85% of passengers are carried through roads. In which direction of Brazil there is no sea coast? तो ब्राजील की अगर आप उस तरफ जाओगे तो पेरू आ जाएगा वहां पे, ठीक है। सो वेस्ट की साइड में कोई भी सी कोस्ट नहीं है। चलो अब ये बताओ, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द करेक्ट पेयर्स। सो जल्दी से बता देते हैं। पैंटनल इज अ फॉर्म ऑफ एनाकोंडा, राइट। लुक्स लाइक अ लायन, गोल्डन टैमरिन। Fish variety, pink dolphin, obviously, and huge size bird, condors, right? So A is the correct answer for this particular question. Which of the following is not a major trading partner of Brazil? So you know that India and Brazil have a very good relation, very good foreign relations, right? And Pakistan and Brazil are means क्या बोलते हैं, दोनों बिल्कुल अलग हैं, तो पाकिस्तान और ब्राजील के बीच में रिलेशन अच्छे। व्हाट टाइप ऑफ टूरिज्म इज डेवलपिंग इन ब्राजील? तो ब्राजील में कैसी टाइप की टूरिज्म डेवलप हो रही है? हिस्टोरिकल, कल्चरल, इको टूरिज्म और प्रोफेशनल। सो वी नो दैट इट लाइज ऑन द इक्वेटर, तो इक्वेटर के पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज होते हैं, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज होते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। सो बेसिकली इको टूरिज्म इज बीइंग प्रमोटेड। करेक्ट द ऑर्डर ऑफ माउंटेन रेंजेस फ्रॉम साउदर्न हिमालयस टू द नॉर्दर्न हिमालयस। साउथ से नॉर्थ की तरफ जाना है तो सबसे पहले आएगा शिवालिक, फिर आएगा हिमाद्री, और फिर आएगा, सॉरी, पहले आएगा शिवालिक, फिर आएगा लेसर हिमालय, फिर आएगा हिमाद्री। सो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, इंडिया इज लोकेटेड इन द डैश हेमिस्फीयर्स ऑफ द अर्थ। मतलब ज्योग्राफी वाज वेरी इजी, ठीक है। सो इंडिया इज लोकेटेड ऑन द वेस्ट विच हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, नॉर्थ में आता है ऊपर की तरफ, एंड ईस्टर्न, ईस्ट में आता है। सो बी इज द करेक्ट आंसर, डी नहीं, साउथ में नहीं आता इंडिया, यहाँ आता है। ये नॉर्थ है, ऊपर की तरफ है, और ये ईस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट। विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज यूजिंग द लोगो प्रिंटेड हियर? ठीक है, तो भाई यार कितने सारे बच्चों ने आंसर कर दिया, गजब यार, गजब। सो इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, राइट। सो ये ओपीईसी का लोगो है, ये पेट्रोल को मतलब उसको डिनोट करता है, पाइप्स को जिससे हम पेट्रोल भेज सकते हैं। सो ओपीईसी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। विच इज द मोस्ट अर्बनाइज स्टेट इन इंडिया? सो आपको पता ही है कि गोवा इतना सा है और पूरा ही अर्बनाइज्ड है। कल्चर इज ऑल्सो पोर्चुगीज, सो दैट इज वाई गोवा इज द करेक्ट आंसर। आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर ऑफ द रिवर एंड ट्रिब्यूटरी। सो गंगा की ट्रिब्यूटरी यमुना है, कृष्णा की ट्रिब्यूटरी तुंगभद्रा है, सिंधु की ट्रिब्यूटरी सतलुज है, या तापी की ट्रिब्यूटरी भीमा है। तो ये तीनों करेक्ट हैं, तापी की ट्रिब्यूटरी भीमा नहीं है, ठीक है। भीमा एक अलग रिवर है जो कि उधर ही फ्लो करती है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, और तापी ऑल्सो फ्लोज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। दे बोथ फॉल इन द अरबियन सी। विच लेटर इंडिकेट्स द सरफेस वेव्स इन द गिवन डायग्राम? ये क्या है? नहीं, दिस इज नॉट बोनस, दिस इज नॉट बोनस। ये आपसे पूछ रहा है सरफेस वेव्स ना, सो देख रहे हो ये वेव्स बहुत लंबे हैं। नहीं नहीं नहीं, ये बोनस नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज नॉट अ बोनस क्वेश्चन, इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन।
राइट। सो ये देख रहे हो, ये है सरफेस वेव्स, और देखो इनकी वेवलेंथ बहुत लंबी है, ठीक है, बट इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी बहुत छोटी है। सो ऐसे जो वेव्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं लव वेव्स, राइट। एच टी लव ने प्रपोज किया था लव वेव्स को, दे आर द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव्स, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव्स। सो ये लव वेव्स को डिनोट कर रहा है। सो डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। लव वेव्स जो होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, वेवलेंथ बहुत ज्यादा होता है, एम्पलीट्यूड बहुत वेरी करता है, दैट इज वाई दे कॉज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। पी वेव्स जो होते हैं वो बहुत थोड़े देर के लिए आते हैं लेकिन बहुत तेजी से आते हैं, तो उससे ज्यादा इफेक्ट नहीं होता, तुरंत आया घर को हिलाया चला गया, ठीक। एस वेव्स जो होते हैं वो थोड़े ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, ठीक है, वो 2-4 सेकंड तक घर को हिलाएंगे फिर जाएंगे, बट इंटेंसिटी कम होती है। एल वेव्स की इंटेंसिटी बहुत कम होती है बट बहुत देर तक रहता है, इसलिए ये पूरा वेवलेंथ इतना लंबा है, देख रहे हो, बहुत देर तक ये वेव्स रहते हैं, ठीक है, तो पूरा घर को हिला के जब तक गिराएगा नहीं तब तक जाएगा नहीं। सो दैट इज वाई डी, लव वेव्स इज द करेक्ट आंसर। आई हैव टॉट दिस क्वेश्चन राइट बिफोर द सेशन ऑफ, ये सरफेस वेव्स पूछा है ना, तो सरफेस वेव्स तो यही पे आ गए ना, ये सरफेस वेव्स हो गए, सरफेस के ऊपर, ठीक है, बट ठीक है, इट माइट बी बोनस बट मुझे तो समझ में आ गया, ठीक है। सो गाइस दैट इज इट फ्रॉम द पेपर ऑफ महाराष्ट्र। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। So if I'll talk about the cutoff, so bacha, the cutoff for Maharashtra will be around 165 to 170 for me, and for the SEBC, sorry, for the EWS category, it will be around 130, according to me. ठीक है, ठीक है. So guys, that is it from this session of Vedantu, and thank you very much बच्चों for attending the session. Like कर देना वीडियो को जल्दी से, and we'll meet again tomorrow with a new paper of some different state. And till then, take care बच्चा लोग. Bye bye, bachcha log, and thanks a lot. Good night.